students. So today we will start the remaining part of the chapter number 6, the 100 dresses. So let's start from page number 76, last paragraph. If she ever heard anybody picking on someone, अगर उसने किसी का नाम कभी सुना होता, because they were funny looking, क्योंकि वो दिखने में थोड़े funny हैं, और because they had strange name, या उनके नाम बहुत अजीब से हैं, she would speak them, even if it meant losing Peggy's friendship, चाहे उसके लिए उसे पेगी की मित्रता ही क्यों ना खोनी पड़े. She had no way of making things right with Wanda. उसके पास कोई विचार नहीं था कि किस तरह से वो वेंडा के साथ अपने संबंधों को ठीक कर सकती है. But from now on, she would never make anybody else that unhappy again. आज के बाद वे किसी को इतना अप्रसन्न नहीं करेंगी. On Saturday, शनिवार को मैडी spent the afternoon. मैडी ने पूरा दोपहर बिताया with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. वे वेंडा पेट्रोन्स्की को एक पत्र लिख रही थी. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. यह केवल एक फ्रेंडली लेटर था जो कॉन्टेस्ट के बारे में बताने के लिए था और बताने के लिए वेंडा को कि वो जीत चुकी थी. They told her, उन्होंने उसे बताया how pretty her drawings were, कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो कितनी सुंदर थी. And they asked, उन्होंने पूछा her उससे if she liked where she was living, कि वह कहाँ रहती थी, and if she liked her new teacher, क्या उसे उसके नए टीचर पसंद है. They had meant to say they were sorry. उनके कहने का मतलब था उन्हें बहुत दुख है, but it ended up with their just writing a friendly letter. लेकिन जैसे ही वो अपने फ्रेंडली लेटर समाप्त किया उन्होंने, the kind they would have written to any good friend, जिस तरह से वे किसी अच्छे मित्र को लिखते हैं. And they signed it with lots of love. They mailed the letter to Boggins Heights. उन्होंने उस पत्र को Boggins Heights पे भेजा. Writing please forward on the envelope. और उन्होंने एनवेलप पर लिखा कि आगे इसे प्रेषित करें. Days passed, दिन बीत गए, and there was no answer. वहाँ कोई जवाब नहीं था. But the letter did not come back. लेकिन पत्र वापस नहीं आया. So maybe Wanda had received it. हो सकता है वेंडा ने इसे प्राप्त किया हो. Perhaps she was so hurt and angry. शायद वह बहुत दुखी थी और नाराज थी. She was not going to answer. वह उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी. You could not blame her. और आप उसे कोई जवाब, आप उस पर आरोप भी नहीं लगा सकती हैं. Weeks went by. सप्ताह बीत गए. And still Wanda did not answer. Wanda ने कोई जवाब नहीं दिया. Peggy had begun to forget the whole business. Peggy ने भूलना शुरू कर दिया था पूरी बातों को. And Maddie put herself to sleep at night, making speechless about Wanda. Maddie उस रात सोते सोते बिल्कुल स्पीचेस बना रही थी वेंडा के बारे में. Defending her from great crowds of girls, कि उसे किस तरह से भारी भीड़ के लड़कियों से बचाएगी. Who were trying to tease her, जो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी. How many dresses have you got? तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं. And before Wanda could press her lips, इससे पहले कि वेंडा अपने फोटो को हिलाती, together in a tight line, the way she did before answering, जिस तरीके से वो उससे पहले उत्तर देती, Maddie would cry out, और Maddie चिल्ला पड़ती है, stop, रुको. Then everybody would feel ashamed the way she used to feel, और उसके बाद सभी लोग शर्मिंदगी महसूस करेंगे जिस तरह से वो महसूस करती थी. Now it was Christmas time. अब ये क्रिसमस का समय था. There was snow on the ground. जमीन पर बर्फ पड़ी हुई थी. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. क्रिसमस बेल्स और एक छोटे से पेड़ को कमरे में सजाया गया. On the last day of school before the holidays. छुट्टियों से पहले विद्यालय के अंतिम दिन. The teacher showed the class a letter. टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया. She had received that morning, जो उसने उस सुबह प्राप्त किया था. You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist had won the drawing contest. कि Wanda Petronsky वो drawing contest जीत चुकी है. Well, she has written me and I am glad to know where she lives. और मुझे जानकर खुशी है कि वो कहाँ रहती है. Because now I can send her medal. अब मैं उसे मेडल भेज सकती हूँ. I want to read her a letter to you. मैं तुम्हारे लिए उसका पत्र पढ़ना चाहती हूँ. The class sat up with a sudden interest and listened instantly. पूरी क्लास अचानक से रुचि लेते हुए खड़ी हुई, बैठ गई और उसकी बात को ध्यान से सुनने लगी. Dear Miss Mason, how are you? And room 13. Please tell the girls they can keep those 100 dresses. कृपया लड़कियों को बताइए कि वो पूरी 100 की 100 ड्रेसें रख सकती है. Because in my new house, मेरे नए घर में, I have 100 new ones. मेरे पास 100 और हैं. All lined up in my closet. I had liked the girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one for Christmas. I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky.
ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हैड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, उन्होंने बहुत सावधानी से पूर्वक अपनी ड्राइंग्स पकड़ रखी थी। ऑल द हाउसेज हैड रीच एंड होली इन द विंडोज, आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर के बाहर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, हजारों क्रिसमस ट्रीज के ढेर लगे हुए थे। एंड इन द विंडो, खिड़कियों में कैंडी पिपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नोकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और पूरे हवाओं में क्रिसमस जैसी गंध थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जहां पर भी रोशनी पड़ रही थी अलग अलग रंगों की बर्फ वे चमक पड़ रही थी। बॉयज सैड पैगी, पैगी ने कहा, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, ये बताता है कि हमें वास्तव में पसंद करती है। इट शोज, ये इससे पता चलता है, शी गॉट आवर लेटर, कि उसने हमारा पत्र प्राप्त किया। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग, और ये उसके कहने का तरीका, दैट एवरीथिंग इज ऑलराइट, कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और ऐसा ही है। आई होप सो, मुझे ऐसी ही उम्मीद है। सैड मैडी सैडली, मैडी ने दुखी होते हुए कहा। शी फेल्ट सैड, उसे बहुत दुखी महसूस हुआ। शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन, कि वह उस पॉलिश गर्ल को दोबारा नहीं मिल पाएगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उनके बीच में वो उस चीज़ों को बिल्कुल ठीक भी नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम, वह घर गई। एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। द शेबी रूम केम अलाइव, पूरा जो गंदा सा कमरा था, पुराना सा कमरा एकदम जीवंत हो उठा। फ्रॉम द ब्रिलियंट्री ऑफ द कलर्स, मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बिस्तर पर बैठी। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग्स, और उसने ड्राइंग्स की ओर देखा। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, उसके पास खड़ी हो गई, उसने कुछ नहीं कहा। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर, लेकिन वेंडा उसके लिए बहुत अच्छी थी। एनीवे, टीयर्स ब्लड हर आईज, आंसुओं ने उसकी आंखों को भिगो दिया। एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, उसने लंबे समय तक तो तस्वीर की ओर देखा। देन हैस्टिली शी रब्ड हर आईज, उसके बाद उसने अपनी आंखों को मसला। एंड स्टडीड इंटेंटली, द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, ड्रेस में जो रंग थे वो इतने विविध थे। दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसमें उसका चेहरा और उसका खुद का मुंह दिखा। व्हाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, ये खुद की जैसी क्यों दिखाई दे रही है। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वेंडा ने वास्तव में उसके लिए बनाया था। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, वह तुरंत दौड़कर पैगी के पास गई। पैग, शी सेड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। आस्क्ड पैगी, पैगी ने कहा। एज दे क्लैटर्ड अप हर रूम, जैसे उन्होंने अपना कमरा खोला, वेंडास ड्राइंग वाज लाइंग फेस्ड डाउन ऑन द बेड, बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बहुत सावधानी पूर्वक उसे उठाया। लुक शी ड्रू यू, ये उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इसकी जो चेहरा और सिर है वो तुम्हारे जैसा दिखता है। व्हाई डिड आई से, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा। सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वह वास्तव में हमें पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव, हाँ वो करती होगी। एग्रीड मैडी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, उसके बाद चली गई। आफ्टर शी हैड, उसने कहा, श्योर ए 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, कि वे 100 की 100 हैं और सभी कतार में लगी हुई हैं। So this is the end of this part of this chapter. If you have any doubt or confusion, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.